perfect. What do I do? Okay. Yeah. So basically, I'm first year student. पहले तो, like in Okay. education wise, Okay. I'll tell you, Okay. first year student, same as you. Okay. और साथ में I do hell a lot of things. तो उनमें से एक आध चीज मैं बता सकता हूँ. Hmm. So एक तो like you must be knowing, एक तो हमारा दास्तान है, and separately I run a branch, a brand kind of, जिसको आप कह सकते हैं, that is Life Talk. Basically Life Talk, Life Talk is your मैं दोनों, ownership, right? हाँ, Life Talk is my ownership. Like Yeah. basically Life Talk is my parent brand, जिसके Okay. अंदर आता है दास्तान वगैरह, वो उसके अंदर आता है. Got it. सो बेसिकली लाइफ टॉक का मैं बेसिक आइडिया बताता हूँ, मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, मैं छोटा Hmm. सा एक दे देता हूँ ब्रीफ. Hmm. सो लाइफ टॉक इज बेसिकली अ ब्रांड, Hmm. जिसके मतलब जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि मुझे मोटिवेट करना है. लाइक स्टार्टिंग में एज मैंने टेक्निकल चैनल स्टार्ट किया था, Hmm. आफ्टरवर्ड्स आई मेट अ फ्यू पीपल, Hmm. जिसमें कुछ पंजाब के लोग थे. सो आई लिव इन मध्य प्रदेश एक्चुअली. Okay. सो मैं ऑनलाइन कुछ फ्रेंड्स से मैं मिला जो कि मेरे फ्रेंड्स बने पंजाब के. दे वर आल्सो यूट्यूबर्स. Okay. So they guided me. They told me कि यार bro, you have a good conversational tone. आप एक काम करो, why not you start a motivational channel. तो उस तरीके से मैंने फिर motivational channel start किया. फिर I went to Instagram, क्योंकि YouTube पे मुझे सच growth नहीं हुई थी. Okay. Then I went to Instagram. Instagram से बहुत लोग मिला. I met you on Instagram, I think. Yeah. Instagram से हम लोग मिले. Yeah. So वो that is a हाँ, so that was, separate thing. वो उस पे मैं आऊंगा कि how हाँ, did we meet? हाँ, exactly. सो हाँ, ये है. फिर दास्तान बेसिकली, इसके बाद दास्तान स्टार्ट हुआ. दास्तान बेसिकली लाइफ टॉक का एक छोटा सा सब ब्रांड है. Hmm. नॉट छोटा सा, मतलब अब तो दास्तान मतलब लाइफ टॉक से बड़ा हो गया. तो Overshadow कर बेसिकली हम लोग क्या है, वी कॉल आवरसेल्व्स फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म. इसका रीजन है बिकॉज टुडे वी हैव मोर देन 1,000+ आर्टिस्ट कनेक्टेड ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जो कि Okay. एवरी डे हमारे ब्रांड नेम से वर्क कर रहे हैं. Okay. सो वो एक चीज है. सो हु वी आर, मैं बताता हूँ दास्तान लाइव बेसिकली क्या है. सो दास्तान लाइव बेसिकली एक टैलेंट शोकेसिंग प्लेटफॉर्म है, और हम लोग हर टाइप के टैलेंट को सपोर्ट करते Okay. हैं. इंदौर से स्टार्ट किया, फिर वी वेंट टू अमृतसर, फिर वी वेंट टू दिल्ली एंड डिफरेंट प्लेसेस. तो अभी दास्तान लाइव चल रहा है, जिसके अंदर अभी हम लोग इंदौर में बहुत एक्टिव है. नाउ वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन इट सोशल मीडिया. पहले हम लोग बिफोर द लॉकडाउन हमारा Offline मेन एम events. था, हमने फिर पूरा ऑफलाइन था हमारा. अब वी हैव टर्न्ड टू ऑनलाइन, और अब हम पूरा ऑनलाइन पे फोकस है. तो Got it. छोटा सा intro. So that. Yeah. And now Thank I'll give a nice context as to how I met. So I'll you. I'll tell this YouTube channel on which this video would go. Right now it is rebranded with my own name, but usse pehle it was School of Thought, which was my first channel name, if you want to take it that way. Okay. So School of Thoughts, हम्म. I had started with the idea that okay, school है, thought है, तो ठीक है, School of Thoughts. सुनने में अच्छा हम्म. लगता है, कर देते हैं. हम्म. I started out with that. And right now, that has completely transitioned into a campus to corporate type of videos, college type of videos, career guidance type of videos and all. Earlier, it was completely student frustration videos. Like as a student, मेरे को जो frustration रहता था, education system से, school Yeah. system से, वो सब से. So I used to just put out that content. कि schools में ये खराब I है, ये know. खराब I है. have watched them. Hmm. After while I was doing that, I always used to search on YouTube कि who else is putting out videos bashing the education system. तो उसमें सबसे वो टॉप पे विवेक बिंद्रा का वीडियो चलता था about education. That is like millions of. Hmm. उसके I think so second या third ranking पे तेरा वीडियो. White कलर का Okay. कोई thumbnail था. White कलर का कोई हाँ, thumbnail था. for And I think so you had spoken out some points regarding education system. Now the problem with all the foreign other. education system Yeah, and exactly. foreign education Yeah, system है, yeah, वो वाला exactly. था. Foreign education system versus Indian education. अब बाकी जितने भी वीडियोस YouTube पे मैंने टॉप पे देखे थे, सबके पॉइंट्स काइंड ऑफ ऐसे नहीं थे जो नए सुने थे. इट वाज कि ठीक है, आई न्यू दिस पॉइंट, यू पुट इट इन दिस वे. योर वीडियो वाज द ओनली वन जैसे अच्छा एक बंदा नए पॉइंट्स ला रहा है. He put out Hmm. points जो मैंने नहीं सोचे. And because I was Hmm. already in a frustration with schools, I'm like, this is insane, dude. Like, what is this? Who is this who is bashing it in Hmm. such a nice way? Where I did Hmm. my complete backend research, मैं इसको मिलने का है, उसको मिलने का. You had left no contact details and all. So I
followed your Instagram वहाँ से फिर कुछ करके email ID से phone number, but something I did and I got your phone number, and I at that time I didn't know how to approach someone. I straight away DM'd you on WhatsApp. Hey dude, ऐसा है, मैं तेरी video देखी. I have some feedbacks. Let's catch up on call. And I remember your first reaction was, boss, how did you get my phone number? Because you were like, who is it? Exactly. You were like, ये कौन I was creep so है? like, You were like, ये I कौन was feeling like कि bro ये क्या हो गया? ये कौन creepy बंदा है जो सीधा WhatsApp पे? So then I said, नहीं like हाँ तो yeah. हाँ, so then I said कि okay चलो, so then I told you that ऐसा करके I reached your number, and you were, so when we first spoke on call and I told you कि see I have done these many things to get your number, you were quite impressed कि अच्छा तूने इतना ये link किया यहाँ से यहाँ, and then okay. Then I think we spoke for 2 hours that day. This is like 1 year back. हाँ. तो उस दिन 2 घंटे बाद Exactly. की वो याद है. full on bitching हुई. Then I said कि देख मेरे को तेरे वीडियो में ये points अच्छे नहीं लगे. Then you like कि देख उसका reference ये था, उसका context था. तो फिर वहाँ से बात चालू हुई. Then you said कि अच्छा we could do this as well, this as well. So this is the very small part of what I do. Like I am very big person. I do a lot of things apart from. I'm like cool. Then up till that point I didn't know about Dastan. So that thing happened. I think so you became inactive on that channel. And after that you were your major focus went towards Dastan. So I didn't know about Dastan back then. Then someday randomly you posted about Dastan, and that's when I reached their Instagram page. And I'm like, what is this? So this is some kind of offline meetup, something. That was my first idea. So these people do some meetups and all. I had no clue that you own this thing. I was like, okay, he's randomly promoting this thing. किसी और का होगा. That's when you, with some post, I understood that okay, he is the one who is mainly running the show for this. That's when I came to know अच्छा he's into this. After that, I think so we lost contact for 2-3 months. I like you were busy, I was busy, and कुछ बातचीत नहीं हुआ. 3 months later, I see this guy is at IIM Indore. And I'm like, dude, what is this? What is he doing? मेरे को मेरे school में because at that time I was having some plans about doing offline events with the schools in my city. And I'm like, मेरे को schools में permission नहीं मिल रहा. मैं 6 school घुमा हूँ. I'm not getting permission in my local schools. This guy is taking permission from IIM Ahmedabad. He's on its stage with the logo of Dastan on the projector behind. I'm messaging you. Bro, I remember you messaged me. I'm like, I'm not concerned what you're doing. Tell me, how are you doing this? Forget about what you're doing. तो तब हमारी शायद आई थिंक वी हैड अ टॉक ऑन दिस कि कैसे क्या होना है. मैंने फिर बताया था कि क्या बेसिक. So you told me कि देख ऐसे अप्रोच करना होता है, ऐसे बात करनी होती है, and I'm like cool, मैं भी करता हूँ. वो अभी तक नहीं चला. मैंने बहुत ट्राई किया, बट अभी तक मैंने लोकल स्कूल्स में कोई परमिट नहीं दिया कि भाई लॉकडाउन का तो छोड़, उससे पहले भी कि you are given the permission. So that is when वो हुआ. Again 3 months back, blackout, like we didn't have any conversation. उसके बाद दास्तान 8 के सब्सक्राइबर्स on YouTube, and I'm like, dude, ये 3 महीने में शॉक दे रहा है. that was the context. Thank you so much. That was the entire context of how we met last year and तब से लेकर अब तक क्या हुआ. So now having said that, right now how many subscribers do you stand up? Right now we are, as I remember, like मैंने last time जब check किया था दास्तान पे, so दास्तान is on 8.9K, मतलब it is reaching 9K subscribers. And yeah. Which video of yours has the maximum views? So basically last year we uploaded a video which I thought is not worth it, not worth it actually. Yeah. So that video was वो मेरा best friend है part 1. Yeah, there was some female artist who was into शायरी, right? Yeah, exactly. So the artist name is Meenu Pant. And when I watched that video for the very first time, like I listened that particular performance on the stage only, and I was like, okay, like it is good. And then I went to editing and I edited that video. I was like, okay, it's not a very big deal. ठीक है, मैं upload कर रहा हूँ, and I was very normal. So मुझे ऐसा था कि यार I'll upload that video. और ऐसा था कि उस टाइम तक we had 300 या 300 subscribers as I remember. तो यार I was like पता नहीं बढ़ेगा. और उस टाइम तक एक डिलेमा भी रहता था कि यार मतलब YouTube पे ग्रो करना है तो कुछ कॉन्स्पिरेसीज लगती हैं
एंड क्वालिटी विदाउट कंटेंट, कॉन्स्पिरेसीज यू कैन नॉट ग्रो. क्वालिटी हाँ, कंटेंट। नहीं क्वालिटी कंटेंट भी नहीं. हाँ, नहीं नहीं, क्वालिटी कंटेंट तो इट वाज लाइक, हाँ ठीक है मतलब वो तो होगा, बट उसके अलावा आई यूज्ड टू थिंक लाइक कि भाई यार यूट्यूब से कांटेक्ट करना पड़ता होगा, यूट्यूब को कॉल करके पैसे वैसे देने पड़ते होंगे कि भाई सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो. सो आई वाज ऑन दैट डिलेमा कि यार मेरे हाँ, यहाँ भी चैनल नहीं बढ़ा था, लाइफ टॉक वाला बढ़ा था, बट आई वाज नॉट नॉट वेरी श्योर कि ठीक है इतना बढ़ना सही है. गॉट सो यहाँ पर वो हुआ. इसके अच्छा इसके पहले भी आई टेल यू, मतलब दास्तान के पहले भी आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो इट। दास्तान के पहले आई वाज हैविंग लाइफ टॉक से पहले आई वाज हैविंग अनदर चैनल, एंड दैट चैनल रीच 40,000 सब्सक्राइबर्स. ओके, तो बंद हो गया बिकॉज इट वाज हैविंग कॉपीराइटेड कंटेंट. और क्या वो डाला? चैनल एक्चुअली मेरी मदर के, एक्चुअली उसमें बताता हूँ, उसके ऊपर एक्चुअली हमारा एक फैन क्लब होता था, जो कि जिसको अब हम लोग ब्रांडिंग वे में अब टर्न कर रहे हैं. मतलब उसके ऊपर भी मैं बताता हूँ. बेसिकली एक दो स्टार्स हैं, आशा नेगी, ऋत्विक धनजानी. सो माय माय मदर इज अ वेरी बिग फैन ऑफ देम. And this guy, Ritvik Dhanjani, is basically a TV anchor, आई नो and हिम, he's an actor as well. आई नो, You know him, I या, think. सेम थिंग। Yeah, yeah, yeah. So actually, वो मैंने वीडियो लाइक, माय मदर इज अ वेरी बिग फैन ऑफ देम. तो वो ट्विटर पे थे, तो मैंने एक बार उनको बोला कि यार लेट्स स्टार्ट अ फैन क्लब. और फैन क्लब, शी वाज लाइक, क्या फैन क्लब को इतना करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है. मैंने बोला अब स्टार्ट तो करो. तो ये बात है आई थिंक 2014 या 15 14 की बात हो गई आई थिंक. तो मैंने इंस्टाग्राम पे फैन क्लब स्टार्ट करवाया. भाई वो ओके, 40,000, अभी 40,000 पे, 40,000 प्लस पे है वो. ओके, एंड फिर मैंने यूट्यूब चैनल खोल दिया, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड एडिटिंग वीडियोस. तो मैंने फिल्मोरा पे स्टार्ट किया एडिटिंग करना, धीरे धीरे करके. उनके जो अलग अलग वीडियोस होते थे, जी टीवी के वीडियोस होते थे. अब उस टाइम कॉपीराइट आता नहीं था. हाँ, कुछ टाइम बाद जब उनको समझ आया कि भाई इतना पॉपुलर हो गया चैनल, 40,000 सब्सक्राइबर्स, जी टीवी की वीडियोस उठा के, और छोटे छोटे क्लिप्स डालता था मैं, जो कि कोई नहीं कर रहा था इंटरनेट पे. तो वो वायरल चला गया. और हुआ फिर 2017 के मिड में, आई थिंक 2016-17 के, 16 के एंडिंग या 17 के मिड में, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली. तो वहां पर वो चैनल डीएक्टिवेट हो गया, एंड आई वाज लाइक मैन, कांग्रेस। इट इज गेटिंग हार्श. और उस टाइम मैं बहुत बहुत तंग था. आई वाज लाइक वेरी मैड एट दिस कि यार ये क्या हो गया. मतलब आई आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, उस पे मैंने धोखा। बहुत कुछ किया था. तो देन फिर सो बहुत बुरा लगा था मुझे. आई वाज लाइक यार लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैनल. तो उसके बाद आई स्टार्टेड टेक गीक्स करके, उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था. फिर एनीवे वो हुआ, आई मेट अ फ्यू पीपल. फिर हुआ क्या कि अब मेरे दिमाग में ये था कि भाई मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है आपने बहुत मोटिवेट कर लिया, अब यार ऑन रिजल्ट्स क्या है आपके पास में, मोटिवेट करने से कौन बदल रहा है अपनी जिंदगी. तो मैंने एक दिन सोचा, एंड उस टाइम आई वाज इनटू अ डिफरेंट बिजनेस एज वेल. मतलब नॉट बिजनेस एक्चुअली, आई स्टार्टेड अ स्टार्टअप. मेरे फैमिली में कोई स्टार्टअप ना बिजनेस किसी का कुछ नहीं. आई एम बंसल बाय द वे. ओके, तो मेरे फैमिली में किसी का कोई बिजनेस नहीं है. तो मतलब अग्रवाल्स में वो है ना कि अग्रवाल्स में बहुत बिजनेसेस होते हैं, अग्रवाल्स एंड ये बनियाज में बहुत बिजनेसेस होते हैं. तो मैं बनिया हूँ, बट मेरे इसमें कोई बिजनेस नहीं है. सो आई एम अ लाइव कॉपी की मेरा मेरे उसमें कोई बिजनेस नहीं है. तो उस टाइम एक बिजनेस में था, एक स्टार्टअप में था कि एक था कोलकाता में. देयर वाज वन गाय जिससे मैं मिला था ऑनलाइन, एंड ही बिट्रेड मी. एंड आई वाज लाइक डूड, लाइक व्हाट, मतलब एवरीथिंग इज गेटिंग अपार्ट एंड एवरीथिंग इज गेटिंग ओवर मी नाउ कि अब क्या. तो व्हाट नेक्स्ट, उस टाइम सोचा क्या, जो क्या व्हाट जी, नेक्स्ट। हाँ एग्जैक्टली. तो उस टाइम मैंने सोचा कि यार व्हाट्स नेक्स्ट. तो अब मैंने सोचा कि यार आई मेट अ गाय इन वन ऑफ द इवेंट्स, एंड आई सॉ दिस इवेंट. और मैंने देखा कि यार ये बंदा है, एंड अब वो बंदा मुझे उस पर्टिकुलर इवेंट में मिला. दैट वाज गूगल्स इवेंट, नॉट गूगल, ओके, मतलब गूगल का लोकल कम्युनिटी का इवेंट था, एंड जीडीजी इंदौर करके उनका नाम था. सो आई मेट दिस गाय, शाश्वत मिश्रा नाम था उस इंसान, उस बंदे का. आई मेट हिम, और मैंने देखा यार, बातचीत करी, तो ही वाज वेरी लाइक माइंडेड पर्सन. मैंने अपना यूट्यूब चैनल बताया, हम लोगों ने बहुत सारे आइडियाज डिस्कस किए, बट कुछ नहीं हुआ. इन द एंड वी सेटल्ड अप ऑन समथिंग कि यार लेट्स क्रिएट अ सोशल मीडिया ब्रांड. तो लाइव टॉक था मेरे पास में. सो आई शेयर्ड हिम, और क्योंकि मैं बात कर लेता हूँ, तो उसने मुझे बोला कि काम करते हैं, सारा बिजनेस सपोर्ट में हैंडल कर लेता हूँ, और तू जितना भी ऑन स्क्रीन वर्क है तू कर ले, और बाकी कभी कभार तेरे को लगे तो तू मुझे इनवाइट कर लेना. सो आई मेट हिम. फिर मैं इंट्रोड्यूस हुआ कुछ चीजों से कि इंटर्नशिप नाम की भी चीजें होती हैं. सो वी हायर्ड अ फ्यू इंटर्न्स जिन्होंने काम किया, हुआ, चीजें आगे बढ़ी. एंड फिर लाइव टॉक वाज लाइक कि ठीक है, अब मैंने सोचा कि लाइव टॉक को बढ़ाना है.
प्रमोट करना है, वी डोंट हैव मनी, व्हाट कैन बी डन। तो हमने सोचा ऑफलाइन इवेंट करते हैं। अब सोचा कि ऑफलाइन इवेंट में मैं संदीप महेश्वरी तो हूँ नहीं कि मेरे इवेंट में भाई लाखों लोग आ रहे हैं, या फिर आसान है। कुछ भी कोई नहीं आएगा ना। हाँ। हाँ आसान है वो फिर अब सोचे कि आसान क्या है। तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स डू एन ऑफलाइन इवेंट, और उसके अंदर अपन अलग अलग आर्टिस्ट बुलाते हैं। तो उस टाइम तक मुझे पता नहीं था इंदौर में मैं रहता हूँ एक्चुअली, तो मुझे पता नहीं था कि इंदौर में कोई ओपन माइक है। तो मैंने ओपन माइक सोचा कि यार लेट्स स्टार्ट एन ओपन माइक। ओपन माइक होने के 4 दिन पहले आई रिमेम्बर, जो वो पार्टनर था मेरी उससे लड़ाई हो गई। एंड वो मुझे लगता है मेरी इमेच्योरिटी थी, आई थिंक 2018 की बात थी, मेरी इमेच्योरिटी थी कि उस बंदे को मैंने मतलब हम लोग की लड़ाई इस बात पे हो गई कि ही वाज टेकिंग ओवर मी, वो सारी चीजें हैंडल कर रहा था अपने हिसाब से, एंड आई वाज़न्ट लाइकिंग दैट। और मुझे अब रियलाइज होता है कि वो शायद सही था या नहीं था, पता नहीं, बट ठीक है, मेच्योरिटी होती है, सीखता है इंसान। तो वो वहां से फिर सेपरेट हो गए। देन दास्तान जो हुआ वो फिर हमने 3 दिन के अंदर कंडक्ट कराया। दास्तान 15 लोग आए, और एक और बंदा था मेरे साथ में जो कि उस टाइम इंटर्न ऐड हुआ था मेरे साथ, जो कि मेरे फैमिली फ्रेंड था। सो वो 15 लोगों में से मेरे ख्याल से 14 नहीं, आई थिंक 11-12 लोग मेरे फैमिली के थे। तो इट वाज मेनली अ फैमिली फंक्शन सो वो फैमिली फंक्शन था, 4 लोग अलग से आए थे वही प्रमोशन से। मैंने बोला भाई ब्रो ये काम नहीं कर रहा है, बट वो पूरा फिर हमने किया, बट मजा आया था ब्रो, सीरियसली बताऊं मुझे करना था, बिकॉज फॉर 2 years आई वाज स्टेइंग एट होम, और 2 साल मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने बोला अब कुछ करना है नया। अब मैं घर पे क्यों था, बिकॉज मेरे पास में डमी था। डमी इज बेसिकली लाइक घर पे रह के पढ़ाई करो 11-12। सो आईआईटीज के लिए लोग लेते हैं, बट मैंने आईआईटी नहीं किया। सो मैंने आईटी बोला नहीं लिया ठीक है, या अब मिला मैं नहीं? आईआईटी यार ब्रो करना था, प्रिपरेशन करना था, गया भी था 2 दिन। ब्रो 4 दिन में कोचिंग गया था, सीरियसली बता रहा हूँ, लाइक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। 4 दिन में कोचिंग गया, मुझे कुछ नहीं मिला और मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे रोना आ गया कि ब्रो ये नहीं करना है यार। और उस टाइम के संदीप महेश्वरी देखते थे यार सबसे ज्यादा सो इट वाज लाइक कि यार अब ज्यादा हो रहा है। तो वो इवेंट कराया पहला, भाई कुछ नहीं आया हाथ। सेकंड इवेंट कराया, सेकंड इवेंट अब हुआ क्या कि सेकंड इवेंट मेरा जो लोकलाइट एरिया, I don't live in Indore. I live मतलब थोड़ा सा दूर, I think 10-20 kilometers you can say from Indore. तो that is a town basically, मतलब छोटा सा अपने आप में टाउन है। तो यहाँ पे अराउंड 1 लाख की ऑडियंस हो, यहाँ पे वायरल करना बहुत इजी इस पर्टिकुलर टाउन। सो मैंने क्या, मैंने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, नियर में इवेंट करवाते हैं, शायद हो सकता है लोग आ जाए। करा, 70-80 लोग आ गए पहले इवेंट में। तो आई वाज लाइक ओके, बट मुझे लगा नहीं था कि मुझे चाहिए था कि मुझे यार जहां पर मैं हूँ, जहां पर इजी है, मुझे वो नहीं करना, मुझे वापस इंदौर में जाके करना है। बट इंदौर में कैसे करोगे, आप 17 साल के हो, आपके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, यू डोंट हैव कॉन्टैक्ट, आपको अपना कैफे आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन क्यों देगा फॉर फ्री फॉर 5-6 आवर्स, जिसके अंदर कैमरा भी आपको अपने मनी से लगाना, वो चलो वो मैं कर लेता, वो मैं कहीं ना कहीं से कुछ भी करे करता, बट आपको हर चीज अपने मनी से करनी है, सब मनी मांग रहे हैं, कैसे होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही बात है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स। सो मतलब जब मतलब वो हुआ क्या मैं बताता हूँ। तो आई टोल्ड यू अबाउट दिस ग्रुप, गूगल का एक कम्युनिटी थी, आई टोल्ड यू जीडीसी। अबाउट देम। जीडीजी, या जीडीजी जीडीसी। इंदौर, या। गूगल डेवलपर्स ग्रुप इंदौर। तो एक्चुअली मैंने उस टाइम नया नया ज्वाइन किया था जीडीजी इंदौर, एंड आई वाज द यंगेस्ट मेंबर। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, दे यूज्ड टू बी लाइक यार ब्रो ये सबसे छोटा है, क्योंकि सारे कॉलेज में होते थे, एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज इन 11th, और 11th मिड में था या 12th में था, 12th में था हाँ। तो आई वाज लाइक ब्रो ठीक है। तो सब मुझे बहुत पसंद करते थे। तो और सब मुझसे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझसे जलते भी थे कि तू जीडीजी में कैसे चला गया, जीडीजी में तो बड़े बड़े लोग जाते हैं। मैंने बोला यार मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो उनके लिए मैं कर देता हूँ। तो उस टाइम आई वाज ग्राफिक डिजाइनर। तो उसमें एक बंदा मिला जीडीजी में, आई टोल्ड हिम द आइडिया, मतलब सबको पता तो था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार एक काम करता, आई हैव अ फ्रेंड, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। तो वो बंदा मुझे अपने बाइक पे लेके गया, एंड उस टाइम मेरे घर वाले मुझे बाइक अलाउ नहीं करते थे इंदौर तक, अभी भी नहीं करते हैं क्योंकि दूर पड़ जाता है उनके हिसाब से, बट ठीक है मतलब अब तो ले जाते हैं। तो उस टाइम वो अपनी बाइक पे लेके गया मुझे, उसने इंट्रोड्यूस करवा, और मतलब मतलब उसने इंट्रोड्यूस कराया उस बंदे से जो पर्टिकुलर कैफे ओनर था। एंड हुआ क्या, फिर वो हुआ। अब यार ये सोचा कि चलो कैफे मिल गया, अब उन्होंने मुझे बोल दिया कि हाँ आप करा लो, कैफे मिल गया। अब टीम नहीं है आपके पास में, आप आर्टिस्ट कैसे मैनेज करोगे,
आप अलग अलग चीजें कैसे करोगे मैनेज? और जो ये पर्टिकुलर फर्स्ट इवेंट में मेरे साथ में एन इंटर्न ऐड हुआ जिसने मेरी हेल्प करी थी, वो बंदा भी नहीं था उस टाइम, बिकॉज वो 11th में था, उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो यार अब हुआ क्या कि मैंने बोला कि नहीं कैंसिल करते इवेंट, बट यार बात हो गई थी। और दूसरा क्या, उन्होंने मुझे कंफर्मेशन की बात कही थी, कैफे ओनर ने, किया कंफर्मेशन देता हूँ मैं। 15 दिन तक कॉल नहीं आया। मैं डर गया यार, और मैंने कॉल पे कॉल कर रहा हूँ सर को कि सर कंफर्मेशन नहीं आया आपका। तो मैंने बोला यार ड्रॉप करते हैं, दास्तान अब कैंसल्ड है। अब दास्तान की फर्स्ट शटर इवेंट का डाउन, नाम था तो शटर मैंने डाउन। रख दिया था। शटर अब डाउन हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैंने फिर क्या किया कि अच्छा एक कंपनी है, आई विल नॉट नेम देम, आई विल नेवर नेम देम, वो पता नहीं क्या होगा क्योंकि सही नहीं होगा शायद वो नेम करना उनको। एंड दे आर फ्रॉम इंदौर, और वो पूरे दुनिया की लाइक दे कॉल देमसेल्व्स, और शायद है भी वो, मतलब मैंने बहुत सुना भी है, मतलब है भी वो, दे आर सेकेंड लार्जेस्ट कंटेंट क्रिएशन कंपनी। ठीक है। और जो हम करने वाले थे और जो हम कर रहे हैं एक्चुअली, और वो चीज कर रहे थे उस टाइम, तो उससे कुछ एम्प्लॉयज से मैं मिला। और वो कंपनी ऐसा था कि उधर सारे इवेंट्स होते थे, उनका जो पर्टिकुलर ऑफिस था उसमें ही सारे इवेंट्स होते थे, बहुत सही ऑफिस था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनके ऑफिस गया, कुछ लोगों से मिला, एंड उन लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत उनके एम्प्लॉयज से। फिर उनसे मैं अलग से मिलने गया, उनको मैंने आइडियाज बताया, उन्होंने बोला नहीं चलेगा, और उन्होंने मुझे बोल दिया दास्तान वास्तान बंद कर। उन्होंने मुझे अपने स्टार्टअप के लिए बोला कि तू को फाउंडर है, तू मेरे लिए काम कर, तू मेरे ग्राफिक्स वगैरह बना देना, सब कर। मैंने बोला मतलब ठीक है, क्योंकि बात सही थी, दास्तान नहीं रन कर रहा था उस टाइम, एंड आई वाज लाइक नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, और टीम भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि अपन एक काम करेंगे, तू इसमें काम कर ले, बाद में अपन दास्तान देखेंगे क्या जाएगा, देखेंगे अपन दास्तान बाद में, मैं चलाऊंगा दास्तान। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, मैं कन्विंस भी हो गया। उसी दिन की बात है, मतलब पता नहीं भगवाना कुछ होता है, आई डोंट नो, मतलब कि ये लकी पार्ट है, आई डोंट नो। उसी रात की बात है, मैं उन भैया से मिलके आ रहा हूँ। एक इवेंट मैंने स्किप कर दिया था उनसे मिलने के लिए, तो मैं बहुत सैड था। मैं गया और मैंने सोचा कि चलो एक बार और चलते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर इवेंट में गया, खत्म हो चुका था। एंड वहां पे जो बंदा था, जिस मतलब मैं जब पहुंचा तो वहां पे एक्चुअली एंड नोट चल रहा था, और सारे बच्चे उससे आगे पूछा, टेक्निकल इवेंट था, तो उस बच्चे सब मुझसे पूछ रहे थे कि यार मुझे ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो किसी ने ना उस कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर इवेंट में किसी ने पूछा उनसे कि यार ये जो मतलब ये मुझे ऐसी एक कम्युनिटी है, मतलब नाम नहीं लूंगा मैं उनका, तो वो कम्युनिटी मुझे ज्वाइन करनी है। तो उस बंदे ने बोला कि नहीं तुम ज्वाइन नहीं कर सकते वो, क्योंकि सबसे घटिया कम्युनिटी, और मैं उस कम्युनिटी का पार्ट था, और मैं बहुत रिसेंटली ऐड हुआ था। तो बहुत घटिया कम्युनिटी है, पीपल आर वेरी इगोइस्टिक एंड ऑल, और मेरे को लग गई, मेरे को चुप गई वो बात कि तूने कैसे बोल दिया भाई, मेरी कम्युनिटी, मैं भी था उसमें। वो सारे बच्चे जब बाहर आए, वो बंदा अंदर ही था। तो मैंने एकदम से अनाउंस किया, मतलब मैंने जोर से बोला सबको कि किसको वो पर्टिकुलर कम्युनिटी ज्वाइन करनी थी। तो ये 2-3 बंदे आ गए, तो मैंने बोला मैं उसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ और मैं ज्वाइन करवा दूंगा, कोई इशू नहीं। तो सब मुझसे बातचीत करने लगे। आई डोंट नो मतलब हाउ इट हैपेंड। तो ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ में, बट जो बंदा मेरे पास आया था, ही वॉज फ्रॉम माई लोकलाइट एरिया, मतलब जहां मैं रहता हूँ टाउन में, वो वहीं का था। एंड बाकी, और वो एक्चुअली इवेंट इंदौर में था, एंड वो मेरे लोकलाइट था। तो मैंने बोला यार चल साथ में चलते घर। तो हम लोग जब साथ में जा रहे थे, तो बेसिकली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग थे, तो वो उसका जूनियर, मतलब ही वॉज इन सेकेंड ईयर आई थिंक उस टाइम, और उसका जूनियर फर्स्ट ईयर में था। तो दोनों से मेरी बातचीत हुई, दोनों को मैंने दास्तान का आइडिया बताया, दोनों दे बोथ वर लाइक ब्रो यार मैं करूंगा 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 तुम्हारे साथ, ये वो। मुझे लगा यार अब अपने को आदत हो चुकी थी रिजेक्शन की, सब हाँ हाँ बोल देते हैं, आखिरी में कोई करता नहीं है। तो कुछ टाइम बाद मैंने बोला ठीक है, मैं ज्यादा लोड नहीं ले रहा था। तो फिर जब घर आ रहा था मैं, तो जो मतलब जो सीनियर था उनका सेकेंड ईयर वाला बंदा, सो ही वाज लाइक कि ब्रो मैं तेरे साथ करूंगा। और वो घर आते आते मतलब बिल्कुल एंड तक जब हम वो पहुंच गए थे, जो मेरा पर्टिकुलर एरिया महू में मैं एक्चुअली रहता हूँ, MHOW, अम्बेडकर जी का ये मतलब ये यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। सो हाँ, सो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते बस में ही हम लोगों ने सब डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। मैंने उसको आइडिया बताया कि यार ब्रो ये इवेंट का वेन्यू फाइनलाइज होने वाला है अभी, हुआ वो, उसने बोला कि हाँ मैं करूंगा, और नंबर वंबर एक्सचेंज हो गए। फिर बाद में उसने 2-3 लोगों से और मिलवाया, फिर हुआ, मतलब सही हुआ, मतलब उसके कॉलेज के कुछ म्यूजिक ग्रुप से उसने मिलवाया, सही हुआ। फिर हुआ क्या, ऑटोमेटिकली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट, मैंने बताया था जिनका कॉल नहीं आया था, दैट ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैफे, उनका मेरे पास कॉल आया।
उन्होंने मुझे बोला कि तेजस वो इवेंट का मैंने बोला था ना, मैंने बोला हाँ। तो बोलते कि तेजस वो इवेंट डन है, तुम कर लो। मैंने बोला अच्छा। तो उन्होंने चिल्ड्रंस डे का टाइम आपका देखा, आप कब चिल्ड्रंस डे सुधर गए, के आप कब सुधर गए? एग्जैक्टली सो मतलब वो चीज हाँ। ऐसा हुआ कि ब्रो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ब्रो मतलब व्हाट इज दिस हैपनिंग, लाइक मतलब क्या हो रही है। तो वो इवेंट मतलब वो बंदा ऐड हुआ एंड यहाँ से कॉल आ गया। तो मैंने बोला बढ़िया है, सब सेट है। तो और मुझे और तब तक मेरे पास कोई को फाउंडर नहीं था, मैंने बोला ये शायद मुझे को फाउंडर मिल गया। अब वो पक्का नहीं था। फिर वो इवेंट मतलब उसके कुछ फ्रेंड से मिला। उसका एक फ्रेंड था जो कि जो म्यूजिकल ग्रुप है उनके कॉलेज का, वो उसका हेड था, लीड था उसका। तो म्यूजिकल ग्रुप के अंदर पोएट्स भी थे सारे, म्यूजिशियंस भी थे सारे, सिंगर्स म्यूजिशियन सब थे। तो मैंने बोला ठीक है डन है। तो हम लोगों ने वो इवेंट कराया, वो इवेंट हुआ। और यार वो इंदौर में मतलब मेरा सपना था कि मुझे करना था इंदौर में इवेंट, क्योंकि इंदौर इज अ वेरी बिग सिटी। और नॉट अ वेरी बिग, मतलब हाँ मेरे लिए तो बहुत बिग है। तो वहां पे वो इवेंट करवाया। मेरे घर वाले तो पहले तो ऐसे सोच रहे थे कि यार ये करवा पाएगा। वो करवाया इवेंट, हर जगह न्यूज में मतलब जैसे वो इवेंट हुआ, अगले दिन न्यूज में सिर्फ हम लोग थे, मतलब कि ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ। ऑल तो मेरे बारे में ज्यादा नहीं था, बट ये इवेंट करवाया गया, इतना बड़ा हुआ। कम से कम उस इवेंट में हमारे पास में आई थिंक 150 या 200 थे लोग, और वो छोटा सा कैफे था। सो मतलब टेरेस कैफे था, मतलब तो कैफे उस टाइप वाला का था, खुश हो मतलब गया होगा। बहुत। हाँ ही वॉज वेरी हैप्पी कि यार ब्रो कैसे, मतलब क्या ये एकदम से तुमने करवा दिया। और वो मुझ पे बहुत डाउट कर रहा था कि यार ये बच्चा है क्या करा लेगा। और वो इवेंट हुआ, लोगों ने पे भी किया हमें, फिर हमने 100 रुपीज चार्जेस रखा, वो हुआ ठीक है। अब आ गया था ट्वेल्थ की बारी, ट्वेल्थ का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की बारी। तो घर वालों ने मना कर दिया था कोई इवेंट ओके, नहीं वेट करना, वेट वेट वेट, बट होल्ड बोर्ड होल्ड एग्जाम। एवरीथिंग, होल्ड एवरीथिंग। 12th में कितने परसेंट है? ब्रो मेरे ट्वेल्थ में है 65। वो भी 2 महीने की पढ़ाई में। 54। ओके। तो भाई आप भी कर रहे थे ना 10 चीजें। हाँ अभी ठीक है। आपके पॉइंट पे भी आते हैं आता है। ना। आई वॉन्ट टू नो यू। डन डन। तो अच्छी बात है। और परसेंटेज मैटर नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं करता वो मैटर। करता है मेरे भाई, मैं करता उस है। टाइम मेरे को मैं बता दो कैसे मैटर करता है। मेरी कॉलेज में अगर मैं बस 6% और आता ना, मेरी फीस 7,000 होती। अभी 15,000 है। क्यों? क्योंकि मेरा परसेंटेज खराब था, मैं लोअर कैटेगरी में आ गया। मेरे 7,000 गए। ब्रो मेरी फीस बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ। मेरे मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम चलता मेधावी करके, ठीक है। हम्म, और मैं क्योंकि था एमपी बोर्ड से, बेसिकली मेरा स्टेट बोर्ड था। हम्म, तो वो एमपी बोर्ड वाले जितने भी थे, हम्म, ठीक है, स्टूडेंट्स जिनको 80% से ऊपर आया है, हम्म, everyone has got 100% scholarship for the first semester। और मैंने अकेले ने 94,000 भरे। 95 एक्चुअली, नहीं 95 नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर 50 था हाँ। टोटल पर ईयर का 95 है उनको, फर्स्ट सेम का तेरे 50,000 मिल गए। तेरा जितना ये 94 कितने टाइम का है? फर्स्ट सेम का कि फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट सेम का आई तेरा जो थिंक फर्स्ट ईयर का 40 आ फीस रहा है है ना, अप्रॉक्स। तेरा जो फर्स्ट ईयर का फीस है ना, हाँ। उसमें मैं बीकॉम में हर एग्जाम में केटी लाके हर एग्जाम रिपीट करके पास हो जाऊं ना, इतने टाइम तक मैं इस कॉलेज में खेल सकता हूँ। कितने पैसे? अरे ब्रो देख यार, वो मतलब पता है लिटरली हर अब ये साल, भी ना, ये भी हर अलग साल, ट्रेजेडी है। हर साल दो दो बार देख के भी मैं इतने पैसों में चिल हूँ। मतलब इतने पैसों में मेरा सॉर्टेड है, बीकॉम 2 बार सॉर्टेड है इस कॉलेज। क्या करें ब्रो, तो हम कोर्स भी तो देखो ना, गरीबों वाला कर रहे हैं हम कोर्स, गरीबों वाला नहीं, मतलब हाँ गरीब वाला इंजीनियरिंग टाइप का है, मतलब एमसीए बीसीए सुना होगा, बीसीए कर रहा हूँ मैं। और ब्रो वो एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत सस्ते में होता है। बट मेरा कॉलेज क्योंकि मैंने गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लिया, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि वो नाम का कॉलेज है और वहां एडमिशन मिल गया पता नहीं कैसे, मतलब वो भी अलग ही स्टोरी है यार। सो मेरे पास बहुत स्टोरीज है, तो वो अलग जैसे भी हो गया। तो मैंने बोला ठीक यार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़े दिमाग वाले लोग हों, मतलब मुझे लगा था है। जब आपको रियलिटी पता चलती है तो तब आपको पता लगता है कि नहीं यार ये गलत है। हाँ। तो बस यार वो हुआ, फिर सेकंड इवेंट हमने करवाया जिसमें ना मैं बताता हूँ, जिसमें हमारा वीडियो वायरल हुआ था। वो इवेंट हुआ एंड 12 बोर्ड जाने वाली थी भाई। अब घर वालों ने मना कर दिया कि कोई करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठो पढ़ो, फिर साल भर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। और कोचिंग तो अपन जाते ही नहीं थे, बस था कोचिंग बट जाते नहीं थे। नहीं वो जाते थे सिर्फ दिखाने के लिए, और करते सेम अपन सेम कुछ और ही थे सेम मतलब। सेम। अब क्या करें ब्रो, नहीं है हम लोग, वो हम लोग नहीं यार, हम इस एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं होते हैं।
मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो रिलीज किया, मतलब ये मेरे पर्सनल चैनल पे लाइव टॉक पे ही था, मैंने रिसेंट में वीडियो रिलीज किया, यही था टॉपिक, यही था कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यही तो है कि वी आर नॉट फिटिंग इन द सिस्टम। आपने आपने आप क्या सोच रहे हो, मतलब आप ये सोचे कर रहे हो ये एग्जाम्स आप इसलिए कंडक्ट करवा रहे हो, आपको ये लग रहा है कि आप बहुत सही करो, मैं गलत नहीं बोल रहा, आप भी शायद अपने पॉइंट पे सही होगे कि यार ठीक है, क्योंकि 50 साल पहले यही सिस्टम चलता था, आज के टाइम में ये सिस्टम नहीं वर्क करता है, क्योंकि हम जैसे लोग हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में हैं, आप हमें भी तो ट्राई करो। एक एक बीच में अभी मीम किसी ने बहुत सही डाला था, बोला इन लॉकडाउन ओनली नेसेसिटी गुड्स आर अलाउड एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर क्लोज्ड, व्हिच मींस दैट दे वर नेवर अ नेसेसिटी। हाँ मैंने देखा था ये। एग्जैक्टली मैन, एग्जैक्टली, और ये रियलिटी है ब्रो, मतलब अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ब्रो फॉर एग्जांपल इफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, then how are you thinking they are helping them? Like how are you thinking schools and colleges are helping us? We are किसी not ने happy going in college. ये यू नो अबाउट द एमएलएम सिस्टम राइट, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन हाँ, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, या पता है ना, एमबीए वो लोग करते हैं। किसी ने बीच में एक स्क्रीनशॉट रेडिट पे डाल दिया था और वो बहुत उसको शेयर्स मिले थे। दैट स्क्रीनशॉट वाज के कोई कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें द प्रोफेसर राइट्स के डूड आपका ये, और रिसेंट का स्क्रीनशॉट है, मतलब अभी लॉकडाउन के टाइम पे, एंड द प्रोफेसर राइट्स के डूड आप लोग का फीस भरने का लिंक हम ओपन करने वाले हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, विद इन 4 days वो स्टार्ट हो जाएगा, यू कैन स्टार्ट पेइंग योर फीस, इफ यू ब्रिंग वन additional admission into the college, you get 5,000 discount on your fees. And this guy is like, college में भी chain marketing start हुआ, college में MLM system ये लोग लेके आए कि भाई you collect new people. ब्रो रियलिटी है, मैं बताता हूँ ना, लास्ट ईयर व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू कॉलेज, और मैं मेरे कॉलेज में नहीं ले रहा था, क्योंकि मेरे कॉलेज में एक्चुअली इट वाज लाइक कि ब्रो मैरिट बेस्ड था, मैरिट थी नहीं, क्या मिलेगा, और मैं जाने वाला था एमबीए में। सीरियसली ब्रो, मतलब मेरे कॉलेज, और वो पता नहीं कैसे हो गया, मतलब इट वाज लाइक कि मतलब मैं एमबीए के लिए जाने वाला था, मेरे कॉलेज में एमबीए प्रोग्राम भी है, तो उसमें भाई ये 80% अपना तक का कट ऑफ इंटीग्रेटेड गया। ना, इंटीग्रेटेड हाँ राइट। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड 5 ईयर, मेरा 6 ईयर इंटीग्रेटेड एमसी है। हाँ वो तो ये जो तू बोल रहा है ये सब मैं सर्च कर चुका था, एक जमाने में मैं भी इंडोर शिफ्ट होने वाला था, आई एम इंडोर 5 years इंटीग्रेटेड। ब्रो आ जाता अपन काम कर रहे होते साथ में। सीरियसली मैन, आई एम टेलिंग यू, हम करने वाले थे, मेरा कट ऑफ, बट ठीक, मेरा कट ऑफ कोई मेरी बात नहीं, औकात आई याद एम दिलाता विलिंग, है। कोई बात नहीं ब्रो, यहाँ मेरा भी मेरा कोई ढंग का हाल नहीं है। मुझसे बेटर वाले बैठे हैं, वरना मैं भी अभी बीकॉम या एमबीए कर रहा होता, मेरे घर वालों ने दिला दिया मुझे ये। तो मैं बताता हूँ, तो हुआ क्या कि यार उस टाइम ना एक और कॉलेज है, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहीं पर ही पास में इंदौर में ही है, एंड उसकी एक टीचर जो मेरे फादर की स्टूडेंट है, मेरे फादर प्रोफेसर है, तो उनकी स्टूडेंट है, प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी में ही लोकल। तू कैसे ऐसा निकला, तो क्या तू कैसे ऐसा निकला? ब्रो, मत पूछ, मत पूछ, देख जब इंसान को टॉर्चर किया जाता है ना, तो वो हाँ इंसान ये बनता है और ये बनता है। ट्रू, सीरियसली, ट्रू, सीरियसली। ट्रू। और ये इसकी वही ना स्टोरी सबकी अपनी, जैसे तुम्हारी भी अपनी स्टोरी होगी, मेरी भी अपनी स्टोरी है कि ये क्यों हुआ। इसका भी मैं एक बताता हूँ कि बेसिक होता है क्यों, जो मैं बड़ा एनालाइज करता हूँ चीजों को, मुझे ऐसा लगता है लाइक सेम एज यू, जैसे आप बहुत एनालाइज करते हो मुझे लगता है, एंड आई एनालाइज अलॉट, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो एनीवे वो मैं बताता हूँ एमएलएम वाला, तो वो मेरे फादर की जो स्टूडेंट है, वो बेसिकली एक लोकल यूनिवर्सिटी में, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर शी इज प्रोफेसर। ओके, तो उन लोगों को हर चीज के लिए, मतलब हर एडमिशन के लिए, जैसे वो मेरा एडमिशन कराने वाली थी, तो उनको आई थिंक 20% का आई थिंक वो मिल रहा था, क्या बोलते हैं, एडिशनल बोनस मिल रहा था फॉर एवरी एडमिशन विच दे डू। देखो, नाइस। तो इट इज लाइक कि ये सिस्टम रन कर रहा है ना, आप अगर इतना सही सिस्टम है आपका, आप मुझे ये चीज बताओ ना, इतना सही सिस्टम है आपका, तो आप कैसे कह रहे हो कि आपको इतनी एडमिशंस लाने की क्या जरूरत पड़ रही है? पहला पॉइंट तो ये है, भले ही लोकल यूनिवर्सिटीज हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, सबको एडमिशन लाना पड़ता है, ठीक है, अगर इतना सही सिस्टम है तो क्या सेंस बना मुझे इतनी इंटर्नशिप्स क्यों करनी पड़ती है? ठीक है, आज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि दास्तान में इंटर्नशिप करते हैं, एंड मतलब उनके बारे में मैं क्या बताऊं, दे आर लाइक कि ब्रो मुझे नहीं करना है, मतलब इंटर्नशिप नहीं, मतलब बट मुझे पढ़ाई नहीं करनी,
मैंने बोला क्यों नहीं करनी, देखो वो पढ़ाई रियलिटी, वो मैं मानता हूँ, एक एक चाहिए आपको वो स्कोर और एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको वो, बट इन माय ओपिनियन वो मुझे बोलते हैं कि यार नहीं करना मुझे यार, बस क्योंकि मुझे इस चीज में इंटरेस्ट आता है, मुझे इस चीज में आता है, मुझे प्रैक्टिकल अप्रोच में इंटरेस्ट आता है और मुझे थियोरेटिकल अप्रोच में इंटरेस्ट नहीं आता। एंड आई एम लाइक यार क्या करें, अब ये रियलिटी है, बट अब करना तो पड़ेगा ना, इंडियन हमारे पास ऑप्शन नहीं है कोई अब, इधर अपन या तो यूट्यूब पे वीडियो बना लो और उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। मैंने बनाया फॉरेन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम, लोगों ने शेयर किया, अभी आई थिंक 26-27 हजार व्यूज है उस वीडियो के ऊपर, अभी भी वो टॉप रैंकिंग्स में। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हर दिन कमेंट्स आते हैं ब्रो मुझे चेंज करना है, मुझे चेंज करना है। मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ ब्रो कि यार सेंसलेस है, क्या चेंज कर लोगे बताओ, किस चीज को चेंज करोगे, जो सिस्टम ही चेंज नहीं होना चाह रहा है, ये चीज है। So makes sense. But coming back to your entire दास्तान वाला thing, तो जर्नी पता चल गई कि ठीक है ऐसे स्टार्ट किया था, फर्स्ट शो, सेकंड शो, एंड नाउ इट्स गोइंग। लॉकडाउन से पहले व्हाट यू वर डूइंग ऑफलाइन इवेंट्स एंड ऑल, you were having meetups and also how much like on an average every single month, how much of net income excluding the expenses does come into your hand, सब कुछ हटा के expenses? देखो यार आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सो वॉट एवर आई एम अर्निंग, लाइक आई एम नॉट, आई एम लिटरली ब्रोक राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम ब्रोक, and there is a very big reason behind that. I can earn money, I can save for myself as well, but why am I not doing that? That's because I think I need to invest back in my business, and there is a very big reason behind it, because I want my business to grow. And for example, if I started taking money, look, I have a deadline, like obviously my parents has not given me like as of now, but I have a deadline till I think 22 या 23 years of my life, ठीक है, कि यार उसके बाद you need to earn money for yourself, ठीक है, ये एक genuine deadline होती है जो कोई parent कहता नहीं है, but you have to do that, you have to follow that deadline। वो जो deadline है, मुझे ऐसा लगता है कि I don't need money, or I don't think I need money to, I need to earn money for myself right now। Okay, so If I bootstrap can वाला, ये what you're talking हाँ, about is it the is all bootstrap. bootstrap, Yeah, got it. तो it is bootstrap all वाला that समझ आता है, but okay, so let me rephrase the question. How much is Dastan's profit per month on an average? Which is later being bootstrapped, so that is okay. But okay, so let me separate expenses with investments. Expenses में वो सब हटा दे, which you are paying your cameraman, your venue वाला or anything. So all that exclude as expenses and keep profits just as net profit. उसके बाद you can like bootstrap, that is your choice. But how much is the net profit? right now we are not earning any profit, we are mainly like I'll tell you, we are mainly on break even point, Okay. ठीक है, we are mainly on break even point। I think we'll be starting making profits this year, but अभी कोरोना हो गया, so it's like कि हम लोग अब तक पहुंच चुके होते, ब्रेक इवन से ज्यादा हो चुका होता, बहुत ज्यादा हो चुका होता, और वो पूरा प्रिडिक्शंस था, इस साल हमने स्टार्टिंग में बैठ के ये प्रिडिक्शंस बनाए थे कि क्या होने वाला है इस साल, एंड वी कैलकुलेटेड ऑलमोस्ट लाइक 50K प्लस, लाइक 50K प्लस इन एवरी 3 months, 3 या 4 months। और क्योंकि हमारे इवेंट्स बहुत कम होते हैं, लाइक वी जस्ट हैड, मैं बताऊं टोटल इवेंट्स में अगर बताऊं, हाँ 10K पर मंथ, हाँ, बट इट्स लाइक हम लोग इवेंट्स बहुत कम करवाते हैं, हमारा अब जो मेन फोकस हो गया, जो कि हम लोग ने इस साल डिसाइड भी किया था कि ये चीज होनी चाहिए, दैट वाज कि हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे, हमको लगा था कि देखो ये कोरोना जैसी चीज कुछ ना कुछ तो हो सकती है जिसमें ऑनलाइन इज अ न्यू वर्ल्ड, ठीक है, सोशल मीडिया इज अ न्यू रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। तो देखो एक चीज हो सकती है विच इज कि कभी ना कभी तो ये वाला सिचुएशन आएगा, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जैसा सिचुएशन जिस दिन आ गया कि भाई सब कुछ खराब हो जाएगा, तब क्या करोगे बैठ के, तब सब कुछ बंद कर दोगे? आई डोंट फील लाइक दैट। और बाकी जितने हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग क्या करें, वो लोग सिर्फ ऑफलाइन इवेंट्स पे फोकस कर रहे थे, आज दे आर ब्रोक राइट नाउ, बट हम लोगों ने तब तक इतनी टीम सेटअप कर ली थी कि अब हम लोग सोशल मीडिया से प्रॉपर तरीके से लग गए हैं एनीवे। बट हाँ, कमिंग टू द पॉइंट जो ये है कि हाँ ऑब्वियसली हमने कैलकुलेट किया था, अब वो चीज रीच नहीं हो पाई, ठीक है, ड्यू टू ऑफलाइन क्राइसिस। That makes sense.
So, very quick, I will ask you. Have you seen this web series called Wake and Bake? वेक एंड बेक मैंने नहीं देखी शायद. वेक एंड बेक आई थिंक इनकी है. मैं भूल गया. Preeti इनकी थी ये. Vijay, no? Preeti Vijay. हाँ हाँ Yeah. हाँ हाँ. वो वेक एंड बेक ये मैंने देखी नहीं. मैंने एड लिस्टेड में है मेरे. ये पॉकेट एसेस का अंडर आता है. So they had this web series and उसका keeping aside everything, it was about this entire vibe of college starting. So the message that came, it was a 2 season series. That what message I took out from that was that it was showing that in college everyone has some kind of t-shirt printing का start कर देते हैं या फिर freelance का कुछ start कर देते हैं. So everyone has some business idea. Everyone wants to do some kind of business in their college days, and everyone does that. But what I have seen and what the web series also showed was that lot of trends suggest that all these businesses end when the campus ends, when the college ends, for a simple reason being that uh, three main reasons. One, the business model was not that great, so obviously you cannot sustain it long term. Short term paisa aa gaya, but long term nahi. Second being that some of the core team members say, okay, I'm going out for higher studies, I'm going here, I'm going there. So the team gets divided and all. The third thing being, if in your business after the end of third year, you are making like 5,000, 10,000 per month, and then comes a company on your campus who's offering you 30K, 35K. So as a as a youngster, you would obviously say, okay, let me shut this down part time. Let me take up a job, and we'll continue this afterwards. But that does not happen, obviously. But yeah, at that time, your brain says that we'll continue this thing later. What makes you believe that your thing won't end after your college? Leko, first of all, in my opinion and in my reality, I never started this business in my college. That is my first, best part. I think I never started this in my college, and even like earlier, earlier last year, like in May or no, not in May. I think March, April, May. I was like, मुझे नहीं करना college. I'm out of college. मुझे यही continue करना है. But ठीक है, life की reality है, college में जाना पड़ता है. ठीक है, कर लो जितना ही करना है, but जाना तो पड़ता है. So what I did is मैं पहले थोड़ा सा एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि क्यों क्या मुझे लगता है. मैं पहले वो बता देता हूँ. तो बेसिकली उस टाइम जब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई विल नॉट कंटिन्यू माय कॉलेज और वगैरह वगैरह, so I was having a best part कि I had a few friends of mine who are much senior to me, way senior to me, like they respect me a lot. और मुझे नहीं पता कि क्यों करते हैं, but they respect me. पता नहीं, अब वो कुछ भी रीजन हो सकता है. Anyway, so उनसे मेरी जब बात हुई कि यार सर मुझे नहीं करना है कॉलेज, so they were like कि तेजस मुझे बता तू क्या करेगा. मैंने बोला कि सर मुझे ये कंटिन्यू करना है. तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि ब्रो देखो नहीं पता ये चलेगा नहीं चलेगा, और वो रियलिटी है. अब इस हिसाब से अगर देखूं, उन्होंने जो बात कही उस हिसाब से अगर मैं देखूं, सो माइट बी पॉसिबल दिस विल एंड अप इन अ वेरी बैड मैनर, जो कि होने वाला था, जो कि 12th में भी होने वाला था जब व्हेन आई स्टार्टेड दास्तान. 2-3 बार कम से कम बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ गए कि ये बहुत बुरा एंड अप होने वाला था. इवन स्टार्टिंग दिस ईयर जब हुआ था तब वन ऑफ द बैड सिचुएशंस हिट मी हार्ड. तो वो चीज भी हुई. एनीवे, सो स्टार्टिंग से जब दास्तान स्टार्ट हुआ, आई विल जस्ट टॉक अबाउट दास्तान, नॉट लाइफ टॉक. व्हेन दास्तान स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, तब से आई वाज नॉट हैविंग एनी को-फाउंडर्स. ठीक है, आई वाज हैविंग अ फ्यू पीपल जो कि कुछ टाइम के लिए काम करते हैं. आई चेंज देम, या फिर दे गेट चेंज, उनको शायद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है या फिर चीजें चेंज हो जाती हैं. बट एवरी टाइम इन माय ओपिनियन एंड बिकॉज ऑफ माय लक टू, मुझे ऐसा लगता है कि I find good minds, I find better minds at least for some time, for 5-6 months, 7 months, 1 year, और इस टाइम फ्रेम तक चीजें बहुत अच्छी चलती हैं. सो मेरा जो बेसिक पॉइंट ये है इन माय ओपिनियन कि आई डोंट रिलाई ऑन पीपल. ठीक है, आई डोंट रिलाई ऑन पीपल. एंड जब रिलाई नहीं कर रहा, आई डोंट हैव एनी को फाउंडर राइट नाउ. मतलब है द को फाउंडर विच आई हैव, वो he is basically not in Indore. Presently he is not in Indore. He is basically doing job somewhere else, but he is supporting us financially. So उनको बस क्या करना है, he is just supporting financially. Obviously he is also mentoring us in different ways. He is an HR, senior HR. उनका प्रफुल्ल अग्रवाल नाम है. He is a senior HR in one of the companies. मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का.
बट ऐसा है कि दैट गाय इज सपोर्टिंग अस फाइनेंशियली एंड उनके एक्सपर्टीज तो है ही, एचआर सीनियर एचआर एक्सपर्टीज है, बट ही इज नॉट हैंडलिंग 100% ऑपरेशन। तो मैं उनके ऊपर कभी रिलाई नहीं करता। मान लो अगर कभी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे तो ऐसा भी कभी हमारे साथ हार्ड एंड फास्ट अभी तो नहीं हो रहा, एटलीस्ट आफ्टर लॉकडाउन हमारे साथ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं हुआ कि फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट चाहिए। और कभी ऐसा भी नहीं हुआ है कि यार बिफोर लॉकडाउन लॉकडाउन भी ऐसा कभी भी इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि मैं कभी बेयर नहीं करता। तो आई एम नॉट रिलाइंग ऑन एनीवन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोग चेंज होते रहते हैं। सो आई हैव लर्न टू कोप अप विद थिंग्स। इन माय ओपिनियन आई हैव लर्न टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, ये मैंने अब सीख लिया है, कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है ये मैंने सीख लिया है। खराब भी चल रहा है तो आई एम वेरी मच ओके। लाइक लोग बहुत टेंस हो जाते हैं, जैसे कुछ खराब होता है उनके स्टार्टिंग में, कुछ खराब हो जाता है स्टार्टिंग में बहुत होता ही है, तो कुछ खराब हो रहा है, पीपल बहुत टेंस हो जाते हैं कि यार कैसे होगा, यार कैसे हो रहा है, सब खराब हो रहा है, बंद कर दिया। क्या सेंस बना? मैंने इन दास्तान आई हैव सीन वर्स्ट टाइम एंड आई हैव सीन बेस्ट टाइम, और मैंने दोनों टाइम में आई स्टेड इन दास्तान। तो कभी दास्तान बंद नहीं हुआ। और जिन लोगों को बहुत, जो लोग को फाउंडर्स के क्लेम करते थे कहने का कि हाँ मैं को फाउंडर में ये हूं मैं वो हूं, वो लोग चले गए, दे वेंट, उनको फर्क भी नहीं पड़ा, वो चले गए। तो मैंने ना मतलब ये बेसिक पार्ट होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है। थर्ड पॉइंट मैं बताता हूँ जो कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली भी बहुत सही है, थोड़ा स्पिरिचुअली भी है। एंड दैट पॉइंट इज कि ना लोगों की अलग अलग लाइफ होती है। जैसे कि आई हैव अ लाइफ, आई हैव अ सेपरेट लाइफ। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स होंगे सेपरेटली, या फिर आपके भी सेपरेटली फ्रेंड्स होंगे। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टअप और फ्रेंड्स को मिक्स कर दिया है। मेरे लाइफ में क्या हो गया है, आई एम ऑल अबाउट दास्तान। सीरियसली आई एम ऑल अबाउट दास्तान एंड पीपल हेट दैट अबाउट मी। कि वन ऑफ माय टीममेट्स लास्ट ईयर टोल्ड मी एंड इन अ वेरी बैड मैनर, आई वाज लाइक ओके ब्रो, बात सही है तेरी, कि ब्रो तेरी सोशल लाइफ को डिफरेंशिएट कर। योर सोशल लाइफ इज ऑल अबाउट यू, एंड सॉरी इट्स ऑल अबाउट दास्तान। You have friends in Dastan, you have everything in Dastan, you have your father mother everything in Dastan। मतलब वो है नहीं, मत ठीक है, मतलब उनको ही पता, मेरे घर वालों को दास्तान दास्तान पता है कि हाँ इसका पहला प्यारा दास्तान। सो पॉइंट ये कि जब आपको इतना गहरा अटैचमेंट हो जाता है तो भले ही वो बंद भी हो जाए ना तो भी ठीक मजा है। आया, मतलब मुझे करके ऐसा नहीं मजा आया, लगता कि द जर्नी वाज एग्जैक्टली करके मजा आया, जर्नी वॉज ग्रेट। बाकी बात रही फोर्थ, अब ये तो थोड़ा स्पिरिचुअल मैंने बात कर ली, फोर्थ पॉइंट ऑफ प्रैक्टिकल बात पे आते हैं। प्रैक्टिकल क्या है? हाँ, अगर प्लेसमेंट मिलता है मैं बोलता हूँ जाओ, प्लेसमेंट मिलता है जाओ, बट आपको उसके लिए ऑटोमेशन सेट करना पड़ता है। इन माई ओपिनियन यू नीड टू ऑटोमेट थिंग्स। ठीक है, वो ऑटोमेशन कैसे होता है आज का मैं बताता हूँ सिनेरियो। आज हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, हम लोग के आज तक टीम हो चुकी है आई थिंक 100+ वॉलंटियर्स हो चुके हैं जिन्होंने अब तक काम किया, जो चले भी गए बहुत सारे। तो अभी जो करंट टीम है हमारी वो 5-10 पीपल की है, 5 to 10 लोग हैं जिनको आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट एट ऑल पेइंग एनीथिंग, दे आर डूइंग इन देयर विलिंगनेस। बट पॉइंट ये है कि अब ये जब ऑटोमेशन सब हो गया, जब किसी को मैं पे नहीं कर रहा तभी अगर ये ऑटोमेशन वर्क कर रहा है, दे आर गेटिंग दैट हैप्पीनेस फ्रॉम इट कि यार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं कुछ सेपरेट कर रहा हूँ। दैट्स व्हेन आई थिंक आई विन। ऑटोमेशन इज इम्पोर्टेंट। लोग भूल जाते हैं कि ऑटोमेशन कैसे करना है। यहाँ पर मैंने ऑटोमेशन करना ऑटोमेटिकली सीखा, मैंने, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। हाँ, ऑल्दो जो मैं पहले कम्युनिटी में जो मैंने काम किया वहां से मैंने देखा कि ये ऑटोमेशन चल रहा है, वो फ्री कम्युनिटीज, तो उसमें भी कोई पे नहीं करता, वो कम्युनिटीज पे कम्युनिटीज में कोई नहीं करता। आई स्टार्टेड माई ब्रांड इन दैट जॉनर की यार ये भी कम्युनिटी टाइप में रन हो रही, सो आई एम नॉट पेइंग एनीवन। हाँ, जब जरूरत पड़ती है, जब लगता है तो आई पे, ऐसा नहीं। तो वो ऑटोमेशन ही है जो आपको कभी बंद नहीं करने देगा। ऑब्वियसली देखो यार, कल आपको जॉब लेनी पड़ेगी ना, कल आप ही घर वाले तो आपको कल आके पूछेंगे कि भाई जॉब का क्या हुआ, क्या करो, क्या क्या बोलोगे आप उनको? आप कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप अर्न ही नहीं कर रहे हो। तो आप ये मना थोड़ी ना कर सकते क्योंकि कल तो आपके सर पे सीना, आई मीन कल आपके सर पे आके बंदूक रख दी जाएगी कि यार जॉब क्यों नहीं कर रहे, तब क्या बोलोगे? कोई सेंस नहीं बनेगा। तो वो चीज मैंने अब सीख ली है कि अगर वो भी टाइम है तो आई डू इट। बट अब मैं ऑटोमेशन क्रिएट कर रहा हूँ, बैकएंड में सारा ऑटोमेशन चल रहा है। अभी सारे ग्राफिक्स मैं बना रहा हूँ, कल आई विल हायर समवन जो कि मेरे लिए ग्राफिक्स बनाएगा, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं करना। इसलिए आई स्टार्टेड लाइव टॉक अगेन। लाइव टॉक जो चैनल था मैंने वापस स्टार्ट कर लिया क्योंकि मुझे अब वहां इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रन कर रहा है, कंटेंट ऑटोमेटिकली आ रहा है, मुझे बस एडिट करके डालना है, दैट इज इट।
Great. Nice. So this was the entire part. Like for this podcast, I just wanted to cover you about Dastan. I Hmm. like we will host a separate podcast just bitching about the education system. Like एक घंटा दो घंटे. I'm pretty much into this now. I'm pretty much into it. I like, please invite me. I'm ready for it. I wanted like Please do. I had this idea somewhere in my mind. So Hmm. obviously we start making. So right now I'm bringing in guests who can talk about their business, their field of industry and all. But एक होता है ना कि one thing brings you money or in my case context. So this is what is bringing me context. One thing you do for your heart. So I wanted like I had so deep thing about starting a podcast wherein I know for a Hmm. fact that every student hated his school. I just want to bring random students from everywhere to share why they hated this. These students, I'm into it. these students don't need to be celebrities. Just any random guy to bitching कर तेरे स्कूल तेरे साथ क्या हुआ? What happened with you? तेरी teacher ने क्या? And like at some point when I have a good audience and I can experiment with that thing, so that is something which I want to do. Yeah, bro, I feel, in my opinion, you are doing pretty good work, yaar. मतलब, I have seen your videos, Yeah, and the way you are working, like मैंने देखा है, like I have seen you speaking in different events. मैंने देखा, मैं बहुत follow करता हूँ. मैं बात नहीं हो पाती क्योंकि यार, अब वो जो भी है रीजन, uh, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं. अब यार, एक एंटरप्रेन्योर माइंड का भी एक इशू ये होता है ना कि व्हेन यू हैव दिस वॉरियर माइंडसेट, तो आप क्या करते हो कि यार, यू जस्ट स्टे इन योर जोन. एंड आई एम काइंड ऑफ अ गाय क्योंकि सिर्फ अपने जोन में रहना बहुत पसंद करता है. एंड वो इसलिए बात नहीं हो पाती. बट एनीवे, मैंने आपको देखा है, आई हैव सीन यू वर्किंग सो हार्ड, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डैम श्योर यू विल मेक इट, क्योंकि एवरी डे यू यूज टू रिलीज अ वीडियो, yeah, मतलब ऑन इंस्टाग्राम. yeah. और आई वाज लाइक, यार ब्रो, ये बंदा कुछ अलग कर रहा है. Hmm, रुक, ये बंदा कुछ अलग कर रहा है, 1 मिनट के अंदर वो चीज दे रहा है जो कि नहीं देता कोई. hmm, इजी नहीं है. hmm. इसके लिए मुझे लगता है आई विल रिकमेंड यू फ्यू थिंग्स जो मेरे उस टाइम भी दिमाग में आया था. मतलब अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब मैं थोड़ा सा इसमें ज्यादा रिसर्च करूं. आई विल रिकमेंड अ फ्यू थिंग्स. मतलब इस कॉल के बाद, इस पॉडकास्ट के बाद आई विल रिकमेंड यू. मतलब अपन बात करते हैं नॉर्मली. Done. एंड आई एम ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. Yeah, done. I will be linking all your handles down below. Last time को भी tag करूँगा Instagram. I mean, the best. Please subscribe, guys. I need subscribers. Hashtag road to 10K. Yeah. Thank you, bro. Cool, cool, cool. हो जाएगा. आई थिंक 1-2 महीने में हो जाएगा. Yeah, yeah. All the best. और हो तो फिर केक का वो फोटो डालना, चॉकलेट केक उसके ऊपर 10K थैंक करना. यू सो मच. उस टाइम पे फिर थैंक यू कंजूसी सो मत मच. करना. आई एम डैम श्योर मैं नहीं करने वाला हूँ. एंड आई विल सेंड यू दैट केक हाँ, पिक, मतलब बेसिकली done. देखते हैं. थैंक यू सो मच. Yeah.